everyone, welcome to the sociology class. So today I'm going to complete the paper of Jamia Millia Islamia MA Sociology 2016, and I have found that in Jamia paper there are so many GK questions that are not important for your exam. So from now on I will be skipping those questions because for your 2024 paper there is not going to be a current affair question from 2015 or 16, right? If there will be a question, then it will be from your recent news, your recent current affair. So I will be skipping those type of questions. And today we will complete the paper and you will find the PDF on this Telegram. I will provide the compilation of all the 4 parts. I am your educator Happy Bharadwaj, and let's start and solve the paper. Don't forget to join this Telegram. Okay. So here is the question number 1. As you can see, it is a GK question. She is the first Indian woman boxer to have won the Olympic bronze medal in 2012 at London. Sarita Devi, Kavita Goyat, Jenny RL या फिर Mary Kom. The correct answer is D, Mary Kom. Not a very important question, but I think Jamia asked some, you can say, 10 questions from GK. The Chinese Buddhism pilgrim Xuanzang visited India during the period of Chandragupta, Mughal period, Rampala, Harshvardhan. So some kind of little bit of history, or you can say GK, static GK is important that you can do if you are a social science student. You might have studied it somewhere. The correct answer is D, that is Harshvardhan. Question number 83. It is a religious intellectual group of Muslims which managed the religious matter and interpreted religious regulations and were in charge of judicial matter for Sultan. So दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, एज वी कैन सी 2016 में क्वेश्चंस हैं वहाँ पे से, बट आई डोंट नो 2024 के पेपर में क्या आएगा इस तरह का. जब हम लोग 2023 का पेपर, 2022 का रिसेंट पेपर्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो पाएगी. ठीक है, अब हम लोग पेपर्स को थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इन डिटेल्ड हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि पेपर्स बहुत सारे हैं और टाइम बहुत कम है. तो जो भी मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, मैं से वहीं पे एक्सप्लेन करूंगी. ओके, द करेक्ट आंसर फॉर दिस एज फार एज आई हैव सर्च्ड इज उलेमास. ओके, क्वेश्चन नंबर 84 is from Mughal period. During the Mughal period, she wrote her memoirs entitled Humayunama, which is important source as it sheds light on the lives and cultures of royal harem. Razia Sultan, Jahanara, Mumtaz Mahal या फिर गुलबदन बेगम. सो यू कैन सी दिल्ली सल्तनत, मुगल, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के वो इम्पॉर्टेंट हो ही जाते हैं. थोड़ा सा आपको ऐसी चीज़ें पढ़ के एग्जाम में जाना चाहिए बिकॉज यू नो द बैकग्राउंड ऑफ जामिया, तो उस तरह से आपको पढ़ना है. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज गुलबदन बेगम. क्वेश्चन नंबर 85. अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, मेहर इज व्हाट? सो मुस्लिम लॉ जितने भी हैं वो आपको पढ़ने हैं. मैरिजेस जो टाइप्स होते हैं, डाइवोर्सेस के टाइप्स होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं जामिया के लिए. द फीस ऑफ मैरिज सेरेमनी टू बी पेड टू द काजी, पेनाल्टी पेड टू द कम्युनिटी फॉर इल ट्रीटिंग द वाइफ, द अमाउंट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज टू बी पेड टू द ब्राइड इफ डाइवोर्स हैपन्स, द पेनाल्टी पेड बाय द वाइफ फॉर डिसर्टिंग द हस्बैंड. द करेक्ट आंसर इज सी, द अमाउंट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज टू बी पेड टू द ब्राइड इफ डिवोर्स हैपन्स. क्वेश्चन नंबर 86. डैनियल थॉर्नर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है नेट के एग्जाम में भी. इन्होंने एग्रेरियन क्लास को किस में डिवाइड किया था? 3 तरह की जो इन्होंने एग्रेरियन क्लासेस बताई थी वो कौन सी थी? लैंडलॉर्ड, पीजेंट, एग्रीकल्चरल लेबर, जमींदार, साहूकार, बटाईदार, मालिक, किसान, मजदूर, जोतेदार, हलदार या फिर बरगादार. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मालिक, किसान, मजदूर. Question number 87. Which of the following river originates at Amarkantak? Okay, now this is a GK question. Tapti, Mahi, Swarneka, Narmada. The correct answer is D, that is Narmada. Question number 88. Max Weber traces the rise of capitalism to presence or absence of what? Salvation, Calvinism, Renaissance या फिर Catholicism. The correct answer, I think it's B, Calvinism. Let me know if you think that answer should be anything else. Okay, मुझे comment में आप बता सकते हैं. I'm always open to correct my mistakes. Okay. Question number 89. It is viewed as having the innovative potential of electronic public space
for democracy, dialogue, particularly when applied to a deliberative transnationalism. Aerospace, open space, cyberspace, aquaspace. The correct answer is C, that is cyberspace, because we are talking about electronic public space, right? Question number 90. Which of these heavenly bodies develop a tail when appears near the sun? Now, this is a geography question. Planet, meteor, star, comet. The correct answer is D, that is comet. Question number 91. The institution of langar is central to Sikhism, which means Nirankara, free community kitchen, devotion, salvation. The correct answer is B, that is free community kitchen. अब सिखिज्म या फिर किसी भी रिलीजन के बारे में अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है ना, तो आप एमएसओ के नोट्स को जो इग्नू के नोट्स हैं उनको आप प्रेफर कर सकते हो. वहाँ पर सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन की जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारे नोट्स प्रोवाइडेड हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के इन डेप्थ में, जैसे हिंदुइज्म पे, सिखिज्म पे. सो यू कैन गिव इट अ रीड. ओके. Question number 92. Tribals like Toda, Irulas, Kadars, Kurumbas and Pania belong to Northeast, Central India, South India, Andaman and Nicobar. Now, pronunciation जो है tribals का गलत हो सकता है, so I am sorry for that. The correct answer is C, that is South India. और कहाँ पर है ये भी आप देख सकते हो. पनिया जो है वो केरला का है और बाकी के जो है वो तमिलनाडु में आपको तीनों देखने को मिल जाते हैं. और भी जगह होते हैं बट मोस्टली तमिलनाडु. ओके. क्वेश्चन नंबर 93. Who among these is associated with participation observation? विलियम एफ वाइट, ए कोंट, टीबी बॉटमोरे या फिर मैकडोगल? द करेक्ट आंसर is A, of course, that is William F. White. I have already explained this question in detail, I think somewhere. देखो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं वो सब देखना इम्पॉर्टेंट है. इवन मैंने जो सोशल वर्क के लिए भी 3 वीडियो बनाए हैं वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है देखना, क्योंकि काफ़ी कुछ है जो सोशल वर्क और सोशोलॉजी का ओवरलैप होता है. ठीक है, तो अगर आप उसके वीडियोस भी देखोगे ना तो आपको काफ़ी कुछ सोशोलॉजी में भी हेल्प होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी, क्योंकि जीके पोर्शन जो है वो सोशल वर्क में ज़्यादा आता है और उसमें सोशोलॉजी के भी क्वेश्चंस होते हैं. सो मेक श्योर दैट वॉट एवर आई पोस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू हैव टू वॉच इट, ओके, फॉर योर एग्जाम, बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर फ्री. तो उसका यूज़ करो भाई. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम, सोशोलॉजी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड. हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मैक्स वेबर. Question number 95. A social entity that successfully claims the monopoly of legitimate use of physical force within a given territory. Bureaucracy, police, state, army. किसमें ये होता है कि legitimate use of physical force की मोनोपली होती है, मतलब उनके पास ये राइट होता है दैट दे कैन डू दैट. द करेक्ट आंसर इज सी, स्टेट. और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमें मैक्स वेबर ने दी है. मैक्स वेबर की आप लोग स्टेट की डेफिनेशन जाके देखिएगा, एग्जैक्टली यही है. क्वेश्चन नंबर 96. What was the name of religion propagated by मुगल रूलर अकबर? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी दे सकता है जामिया. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मुगल के चैप्टर्स जो है हिस्ट्री के और दिल्ली सल्तनत, ये वाले आपको पढ़ने हैं. सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. ओके. कोई भी जीके बुक उठा लो. आई थिंक लूसेंट इज बेस्ट फॉर दैट. लूसेंट में सारा जितना भी स्टैटिक है वो है, तो आप लूसेंट के इन चैप्टर्स को रेफर कर सकते हो. ओके. दीनी तालिम, भक्ति, सूफी, दिने इलाही. The correct answer is D, that is Dine Ilahi. Question number 97. Unwritten traditional literature in the form of stories, proverbs, legends, songs, etc. क्या है ये? फैशन है, फोकवेज है, फोकलोर है या फिर फेटिशिज्म है? The correct answer is C. These all are the part of folklore. Question number 98. One is not born a woman, one becomes a woman. This famous statement is given by Simon de Beauvoir, Margaret Mead, Esther Bosserup या फिर एमा गोल्डमैन. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज साइमन दे beauvoir. इनकी बहुत फेमस बुक है, उस बुक का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 99. A wife can obtain divorce from husband provided he agrees to her proposal of divorce among the Muslims. Such divorce is called what? तलाक, निकाह, मुबारत या फिर खुला. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज खुला. एंड बाकी सारे भी जो टर्म्स हैं वो आपको पढ़ने हैं.
मैं अभी 2-3 दिन में एक वीडियो बना दूंगी डाइवोर्स से रिलेटेड इन मुस्लिम्स एंड मैरिज, दोनों को कंबाइन करके, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से ये सब क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. दिस इज द अमेरिकन टर्म यूज टू डिस्क्राइब वर्कर्स इन सर्विस इंडस्ट्री. कौन से वर्कर्स को हम कह सकते हैं सर्विस इंडस्ट्री? अमेरिकन टर्म है. पिंक कॉलर, व्हाइट कॉलर, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज व्हाइट कॉलर. बाकी सारे मैंने यहाँ पर मीनिंग्स अटैच कर दिए हैं. तो ब्लू कॉलर कौन से होते हैं? जो मैनुअल लेबर में होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं. ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप याद कर सकते हो, इनको आवरली बेसिस पे पे किया जाता है. व्हाइट कॉलर कौन से होते हैं? जिनकी डेस्क जॉब होती है. ओके, जो इवेंट मैनेजमेंट रोल्स के लिए होते हैं. रेड कॉलर क्या होता है? जो किसी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं. पिंक कॉलर कौन से होते हैं? जो मोस्टली ऐसे काम जो वुमेन करते हैं, जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट, लाइब्रेरियन, नर्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ व्हाट इज ग्रे कॉलर जॉब? ग्रे कॉलर जॉब्स को ज़्यादातर जो है वो वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर का मिक्सचर कहा जाता है. तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. गोल्ड कॉलर जॉब कौन सी होती है? जिनकी हाई डिमांड होती है, जैसे कि सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना. नीट के एग्जाम के लिए देखो कितनी भीड़ होती है, इसीलिए. नाउ ग्रीन कॉलर जॉब क्या होता है? जो इन्वायरमेंट सेक्टर में होते हैं. ओके, ऑरेंज कॉलर भी है, जिसमें कि दिस ग्रुप ऑफ जॉब रिफर्स टू प्रिजन लेबर्स, नॉट प्रेफर्ड बाय मैनी. ब्लैक में कौन सा होता है? जो आप इलीगल अगर काम कर रहे हो तो यू आर अ ब्लैक कॉलर जॉब. ओके, नो कॉलर जॉब क्या होता है? जो जॉब प्रेफर ही नहीं कर रहा है, जो आर्टिस्टिक है, पैशन ड्रिवन है. ओके, वो किसी जॉब में इनरोल है ही नहीं, वो अपना काम कर रहा है. सो आई होप दैट 2016 के पेपर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. बट एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे इस पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने इन डेप्थ जाकर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं. बट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करूं. 2017 का पेपर अब कल से स्टार्ट होगा, और उसमें मैं एक दिन में 50 क्वेश्चंस करूंगी. ओके, 50 नहीं तो एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस हम लोग एक दिन में करेंगे. और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में सॉल्यूशंस मैं नहीं प्रोवाइड करूंगी, बस आपको एक आइडिया दे दूंगी. ये क्लास डिस्कशन जैसे होता है वैसे हो जाएगा. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा याद करके. और अगर आपके और भी सोशोलॉजी स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे चैनल से हेल्प हो सकता है, तो प्लीज़ उनको भी बताइएगा. सी, चैनल का ग्रोथ चैनल के रिस्पॉन्सेस पे डिपेंड करता है कि मैं आपको ऐसे पढ़ा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि यू ऑल नो दैट एवरीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर फ्री. ओके, आई एम नॉट अ स्पॉन्सर ऑफ एनी कोचिंग. मैं किसी कोचिंग का पार्ट नहीं हूँ. मैं नहीं कहती हूँ सब्सक्रिप्शन लो, ये करो, वो करो. ठीक है, तो जितना भी है सब कुछ फ्री है. तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोगों को ही सपोर्ट करना है. एंड प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने चीज़ों को मैनेज कर रखा है. अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग यू कैन यूज़ देम. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन. टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम से ही मुझे एक आइडिया लगता है कि कितने लोग हैं जो मेरा कंटेंट देख रहे हैं. और साथ ही जो भी पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे. कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी मैं उस पर ऐड करती रहती हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है. एंड दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम. सो अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग.